Today I'm going to teach on prayer आज मैं प्रार्थना के विषय सिखाने वाला because हूं, I feel somewhere this is a month of prayer. क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये प्रार्थना का महीना है। Every one of you need to take this message very seriously in your life आप सभी को इस संदेश को बहुत ही गंभीरता से लेना है, because this is a time where God wants you to understand prayer, be clear about prayer so that you will really pray in your life. क्योंकि ये वो समय है जब परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े साफ नजरिया रखें प्रार्थना के विषय। Using your faith, everything is fine, but praying is the most important ingredient, essential for God to promote us. और विश्वास का होना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना ये मुख्य इंग्रेडिएंट है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सके। Many people are filled with the knowledge of the word, they go nowhere. I tell you, without prayer, the knowledge of the word and the wisdom you have can become corrupted. और प्रार्थना के बिना कोई ज्ञान आप रखते हो तो आपका जो ज्ञान है वो नष्ट हो सकता है। Prayer is a proof of your spirituality. और प्रार्थना आप कितने आत्मिक हो इसका सबूत है। You tell me how many hours you pray, I will tell you how spiritual you are. आप मुझे बताया कि कितने घंटे आप प्रार्थना में बिताते हो, मैं आपको बताऊंगा कि कितने आत्मिक आप हो। If you don't pray, you are not spiritual at all. अगर आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल आत्मिक व्यक्ति नहीं Your हो। prayer is the thermometer, is a temperature of your spirituality. प्रार्थना आपके जीवन का आत्मिक जीवन का टेम्परेचर है। There are many of you who do not pray. I know spiritually you will go through a lot of problem in your life. और कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते, मैं जानता हूं, और आत्मिक तौर पर आप बहुत ही परेशानियों से गुजरने वाले हैं। Yeah, somewhere God wants prayer as a protection also. और परमेश्वर चाहता है कि ये प्रार्थना आपके लिए एक सुरक्षा बने। See, it is also a protective instrument, protective gear for us. और ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। Okay, let's turn to one verse, then we will go into prayer. Ephesians chapter 6. God is talking about the armor. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, परमेश्वर यहाँ पर हमारे हथियारों के बारे में बात कर रहा है। Ephesians 6. He's talking about the armor of God. और यहाँ पर परमेश्वर अपने सारे हथियारों के बारे में बात कर रहा At है। the end he says in verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Holy Spirit. और 18वें वचन में लिखता है कि हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। And being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। So here prayer is termed as a protective gear for a child of God. If you don't pray, you have no protection. My friends, let me tell you यहाँ this. पर प्रार्थना को एक रक्षा कवच के तौर पर बताया गया है, तो अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप सुरक्षा कवच में नहीं हैं। Many of us have a question, if God is all powerful, why should I pray? बहुत लोगों का ये सवाल है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो प्रार्थना की क्या जरूरत है? If he is a sovereign God, what is the need for a saint or a child of God to pray? अगर वो सब जानने वाला परमेश्वर है तो एक संत को या परमेश्वर के संतान को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? God can still do things in your life and in this world. और फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है इस दुनिया में। But let me tell you, today we need to learn about God also, about man also. लेकिन आज हमें सीखना है परमेश्वर के बारे में भी, इंसानों के बारे में भी। What is God's intention when he created man? और परमेश्वर की क्या ये ऐसी इच्छा थी जब उसने इंसान को बनाया? Because when you understand God's intention when he created man, you will understand why we should pray. और जब आप जानोगे कि परमेश्वर की क्या मनस्थिति थी जब वो इंसान को बना रहा था, तभी आप जान पाओगे कि वो प्रार्थना क्यों करना है। So in the Garden of Eden, God created a man called Adam. तो ईदन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया। Now the word Adam means man and mankind and human being. और आदम जो शब्द है इसका अर्थ व्यक्ति इंसान होता है, सारी इंसानियत होती है। So it is not Adam he is a man, he is actually mankind. और आदम जो है वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो सारी इंसानियत को दर्शाता है। So Adam represents us. तो
तो आदम जो है वो हमारा प्रतिनिधि है। So what he told Adam, he actually tells the whole human world. तो जो कुछ परमेश्वर ने आदम से कहा उसने सचमुच सारी दुनिया से कहा है। So you should understand, Adam is not just a man. Adam is not only a man. Adam means mankind also. So what he told Adam, it is applicable for all human beings all time. So what he told Adam? तो परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? Let me read what he told. We have read it several hundreds and thousands of times, but still I would like to read it once more. तो हमने इस वचन को कई बार दोहरा कर पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एक और बार पढ़ेंगे। Yeah. Why not you turn your Bibles to Genesis chapter 1, verse 28. हम उत्पत्ति पहले अध्याय 28वें वचन को देखेंगे। God blessed Adam and Eve, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over everything that moves on the earth. फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। God said, have dominion. परमेश्वर ने कहा कि तुम उस पर अधिकार रखो। Have dominion. So we should understand, having dominion is not a command for Adam. It is a command for entire mankind. तो आपको समझना है कि अधिकार रखना ये केवल आदम से नहीं कहा गया था, ये आदेश सारे इंसानियत से कहा गया था। So please understand, tell your neighbor, you have to have dominion because that's what God has told you. और आप अपने पड़ोसी को देखकर कहिए कि आपको भी अधिकार रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये आपसे कहा है। Good, God did not tell Adam. Some wives, they will say, "Are husband, you do everything." Some husbands do, wives, you do everything. और ये अच्छी बात है कि परमेश्वर ने केवल आदम से नहीं कहा। कई पत्नियां ऐसी हैं जो कहते हैं कि केवल पति को कहते हैं कि तुम्ही को सारा काम करना है। कई पति भी ऐसे हैं जो कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्ही को सारा काम करना है। Many पति देव सोच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी पत्नी का काम है। मुझे लगता है वो बेवकूफी है। स्पिरिचुअलिटी पहला पति का काम है, पति देव का काम है। ओके, आई एम टॉकिंग लाइक अमिताभ बच्चन। It is also important for the woman to be spiritual. दोनों आदमी और औरत के लिए जरूरी है कि वो आत्मिक बने। Both the husbands and the wives need to be spiritual to run the family. दोनों पति और पत्नी को आत्मिक बनना है ताकि वो अपने परिवार को चला सके। If they don't match, there will be a mismatch and there will be a lot of struggle. अगर वो साथ नहीं चलते, बहुत गड़बड़ी हो सकती है और वहां पर परेशानी वो झेलना पड़ेगा। Okay, so please understand, it is for the woman to have dominion, it is for the men to have dominion. तो इस बात को समझे, ये औरत के लिए और आदमी के लिए, दोनों के लिए आपको अधिकार रखना है। Let me read one more verse. और एक और वचन पढ़ेंगे। And these are the words you need to read very often to remind yourself, what are we in this earth for? और ये वो सारे वचन है जिसे बार बार आपको पढ़ना है और अपने आप को याद दिलाना है कि हम इस पृथ्वी में क्यों आए हैं। Otherwise, every day your manager or your boss will keep on saying what you have to be doing. So many of us, we are sidetracked and we are doing some junkyard work and left alone what God has told mankind. और ऐसा नहीं करेंगे तो हम केवल अपने मैनेजर या अपने सुपरवाइजर की बात सुनते रहेंगे और वो हमें ऐसा काम कराते रहेंगे जो कबाड़ खाने का काम है, और उसी में हम उलझे रहेंगे और जो परमेश्वर ने हमसे कहा है उसे हम नहीं करेंगे। When I was working for a secular company, every day at 10 p.m. my boss will call from the headquarters. Every day 10 p.m. means his call will come. और जब मैं एक सेक्युलर कंपनी के लिए काम कर रहा था तो हर दिन रात को 10 बजे मेरे बॉस मुझे फोन करते थे। ये हर दिन की प्रथा थी। He will fry me 10 o'clock. और 10 बजे मुझे वो तल देता था। And whole night I cannot sleep. और पूरी रात में सो नहीं पाता था। Because he will create so much of tension. He will create tension only. Till 9:45 I will be okay. 10 o'clock शैतान मेरे अंदर घुस जाएगा। और 9:45 तक मैं तो ठीक रहता हूँ, उसके बाद परेशानी शुरू हो जाती है। I'll tell you something. Some of you have such managers who will finish you off. You better know. You need to listen to this message many times to really unlearn what your
the people have pumped inside of you. तो आपके बीच में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मैनेजर इसी प्रकार के हैं, और अगर आपने इस वचन को बार बार नहीं सुना तो ये लोग आपको पूरी तरीके से परेशान कर देंगे. Okay, let me read Psalm chapter 8. Take to Psalm chapter 8. भजन संहिता 8वें अध्याय को हम पढ़ेंगे. Verse 5 and 6 I will read. 5 और 6 हम पढ़ेंगे. You have made man a little lower than God himself, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands, and have put all things under his feet. भजन संहिता 8, 5 और 6. क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है. तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है. In verse 6 it is said, you made him to have dominion. और 6वें वचन में लिखा है कि तूने उसको प्रभुता करने के लिए बनाया है. Tell your neighbor, dominion. अपने पड़ोसी से कहे प्रभुता Dominion. करने What के is लिए. this dominion? ये प्रभुता का अर्थ क्या होता है? Now this dominion is to rule. और ये प्रभुता का अर्थ है कि आप राज्य करें. It means to be a servant of God, to be a steward. और उसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के दास बने, सेवक बने. He should be a governor of God. वो परमेश्वर के कार्यों को संभालने वाला व्यक्ति बने. He will be a representative of God. वो एक प्रतिनिधि बने परमेश्वर का. So you should know that you are a representative of God. तो आपको जानना है कि आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हो. You are a governor of God. आप परमेश्वर के गवर्नर के समान Now हो. Maharashtra has a governor. He is governing this Maharashtra on behalf of the Prime Minister of this nation. तो महाराष्ट्र पर भी एक गवर्नर है और वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए वो यहाँ पे प्रतिनिधि बने हैं. So he is actually a representative of God. तो ये सचमुच यहाँ पर परमेश्वर के प्रतिनिधि बने So हैं. please understand, man is a representative of God. तो इस बात को समझे कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के प्रतिनिधि है. We are learning about prayer. हम प्रार्थना के विषय सीख We रहे are हैं. not learning about Adam. हम आदम के बारे में नहीं सीख We रहे. are learning about Adam so that we understand why we need to pray when God is so sovereign. हम आदम के बारे में सीख रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि हमें प्रार्थना क्यों करना है जबकि परमेश्वर सारी बातों को जानता है. Representative means represent. और ये प्रतिनिधि होने का अर्थ है कि आप फिर से उन्हें बताएं. Actually, he represents the will of somebody else on that group. और सचमुच वो किसी अन्य व्यक्ति के इच्छा को उस समूह के बीच में लेकर आता So है. we are representing Jesus Christ to the world. तो हम यीशु मसीह को दुनिया के प्रतिनिधि बनकर लेकर आए हैं. So what is represent? तो इसका अर्थ क्या होता है? Represent. तो फिर से उनके इच्छा को दर्शाए. Again and again present and present and present. Keep on presenting Christ. तो बार बार इसे दर्शाकर यीशु मसीह को उनके बीच में दर्शाए. Let me tell you, it is not a small task to represent God. तो इस बात को समझे कि परमेश्वर को दर्शाना ये कोई छोटी काम नहीं है. So we need to understand we are here as the representatives of Christ. तो हमें समझना है हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर हैं. That is why he made us like himself. और उसी कारण उसने हमको उसके समान बनाया है. No animal can represent God. कोई जानवर परमेश्वर का प्रतिनिधि नहीं बन Only you can represent God. केवल आप ही परमेश्वर के प्रतिनिधि बन Because सकते we हो. are called as representatives. क्योंकि हमें परमेश्वर के एक प्रतिनिधि कर बुलाया है. That is why God has given us his image. और इसी कारण परमेश्वर ने हमें उसका ही स्वरूप में बनाया है. Now what is image? और इसका अर्थ क्या होता है? It comes from an original word called taslim. और ये एक मूल शब्द से आता है तस्लम, जिसका अर्थ है कि हमारी परछाई. It also means an illusion. Illusion. और इसका अर्थ है कि जो एक स्वरूप हमारे सामने बनता है. एक बिंब, right? Bimb is also there. Okay, see, we actually represent God. We are in his image. So we actually reflect God. तो सचमुच हम परमेश्वर की परछाई बनकर यहाँ पर उसके सामने दर्शाते हैं. See, that means we actually look like God. तो उसका अर्थ है कि हम सचमुच परमेश्वर के समान दिखते हैं. When rest of the creation saw Adam, they thought God is coming.
जब सारी सृष्टि ने जब आदम को आते हुए देखा, उन्हें लगा ये तो परमेश्वर आ रहा है, because he was representing God. क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर वहां पर आ रहा है। Okay, when he came close, they understood, oh, okay, this is Adam, this is not God. But he looked exactly and he gave a feel around him as if God is coming. तो वो जब करीब आ जाता तो लगता था ठीक है ये तो आदम है, परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो इसी प्रकार दिखता था मानो परमेश्वर चल रहा है। We are a representative of God, we carry the image of God. हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप को लेकर चलते हैं। Okay, let me read one more verse, Psalm 115 verse 16. भजन संहिता 115 उसका 116वां वचन। Psalm 115, 16. It's a very important word. It 115 says, 16वां वचन। heavens and even the heavens of the Lord's, the earth he has given to the children of men. स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। Given to the children of men. पर पृथ्वी को मनुष्यों को दी है। Now underline the word given. और इसमें ये जो शब्द है दिया है, उसे आप अंडरलाइन करके What is the meaning of given? और उसका अर्थ क्या है कि दे दिया है। Given means assigned. और दे देने का मतलब है ये काम आपको सौंप दिया है। He has assigned the earth to you. और ये पृथ्वी को आपके सामने सौंप दिया है। Listen, God has not given away the ownership of this earth to man. और जो इस पर जो ओनरशिप है वो मनुष्य को नहीं दी है। So we are not owners of this earth. हम इस पृथ्वी के ओनर्स तो नहीं We हैं। don't own this earth. हम इस पृथ्वी के मालिक तो नहीं हैं। Can you read Psalm 24? भजन संहिता 24 को हम पढ़े। Psalm 24 verse 1. भजन संहिता 24 उसका पहला वचन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है परमेश्वर का है। The earth is the Lord's and all its fullness is God. See, God is the owner of this earth. और परमेश्वर इसका मालिक है। Ownership he has not given you. और इस पे जो मालकी है वो परमेश्वर ने किसी और को दी But नहीं। he has assigned it to you. You can use it, you can rule it as a representative of God. लेकिन ये काम आपको सौंप दिया गया है, तो आप इस पर प्रभुता आप कर सकते हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो परमेश्वर के समान उसके प्रतिनिधि बनकर। So tell your neighbor, you are assigned to be on this earth. तो अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि आपको एक प्रतिनिधि बनकर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा So है। we are having an assignment on this earth. तो इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक काम दिया गया है। Tell your neighbor, you have an assignment on this earth. और अपने पड़ोसी को कहो कि आपका एक काम है इस पृथ्वी पर। You are a representative of God on this earth. आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हो इस पृथ्वी पर। Okay, you are here. See, we are not ordinary people. We should understand who we are. Then only we will pray properly. हमें समझना है कि हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर इस बात को हम समझेंगे तभी जाकर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे। Genesis chapter 2 verse 15. उत्पत्ति 2:15। Genesis chapter 2 verse 15. You need to underline all these things, whatever I say. और ये सारे वचनों को आप निशान बनाकर रखें। Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and to keep it. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। If you read the original word, it is shamar. Shamar means to be a watchman. और उसका मूल शब्द जो कहता है वो कहता है कि आप एक वॉचमैन के समान उसे So you have to guard and protect. What is the duty of a watchman? और आपको इसकी सुरक्षा करना है, उसे संभालना है एक वॉचमैन के समान। Now this is not what God told Adam. He told all of us. और ये आदम को नहीं कहा गया था, ये हम सभी को कहा गया है। You are a watchman. आप एक वॉचमैन के नाई हो। You are not only, first we are a watchman for our families. पहले तो हम वॉचमैन हमारे अपने परिवार के लिए हैं। Okay, we need to watch our family. अपने परिवार को हमें संभालना है। We need to protect our family. अपने परिवार की सुरक्षा We हमें need to करनी है। guard our family. अपने परिवार की सुरक्षा हमें करनी All है। the men, we need to understand, you are the protector of your family. सब आदमियों को ये समझना है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ठहराए गए हो। Many families, the man dies and goes away. और कई परिवार ऐसे हैं जो आदमी जो है वो जल्दी मरकर चला जाता है। I tell you, they have failed in their duties और मैं कहता हूं कि वो अपने कर्तव्य में हार चुके हैं, because they have not protected their families. क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को ही संभाला नहीं है। Because of certain bad habits, they pass away from this earth. और कुछ बुरी आदतों की वजह से वो जल्दी मर जाते हैं। If any of you have lost your father, you better be careful. It can come on you. और आप में से किसी ने भी अपने पिताओं को खो दिया है तो आप संभल कर रहे, ये आप पर भी आ सकता है। One man walked inside the house of prayer. I felt he is going to die. और एक आदमी ऐसे इस प्रार्थना के घर में यहाँ पे प्रवेश किया था तो मुझे लगा कि ये मरने वाला है। Then I asked him. He said, I lost my daddy very young in my life.
और जब मैंने उससे बातचीत की तो मुझे पता चला कि उसने अपने पिता को बहुत अपने बचपन में ही खो दिया था। If you are a young lady and you have lost your father, you better be careful. You can lose your husband also. अगर एक जवान स्त्री हो और आपने अपने पिता को बहुत जल्द खो दिया था तो आप संभल कर रहे, आप अपने पति को भी खो सकते हो। Many things are spiritual. बहुत सी चीजें आत्मिक है। People think it is natural. लोग समझते हैं कि ये तो प्राकृतिक This है। is how the demons fool us. और इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं हमें मूर्ख बनाती Nothing हैं। is natural. कोई भी चीजें प्राकृतिक Everything नहीं is spiritual. है। हर एक बात आत्मिक है। Don't we sit and wonder after things happen to you, why God is doing like this? Hey, where were you? What are you doing? और आप ऐसे बैठकर सोचते ना रहे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, आप कहां थे? When we play in the spiritual side, demons are very happy with us. और जब हम आत्मिक स्थल पर हम खिलवाड़ करते हैं तो दुष्ट आत्माएं बड़े खुश हैं हमसे। Every man is a watchman of his house. हर एक आदमी अपने घर का वॉचमैन बनता है। It is very important that you keep your the priorities proper. First, I am a watchman to my house. और ये सारी बातों को, प्राथमिक चीजों को हमें संभल कर रहना है कि पहले मैं अपने घर का, अपने परिवार का रखवाला। Then you are a watchman in the house of prayer. फिर आप इस हाउस ऑफ प्रेयर, इस समुदाय के आप रखवाले बनते हो। Then you are a watchman in your street. फिर आप अपने गली, जिस गली में आप रहते हो उस गली के एक रखवाले बनते हो। Then you are a watchman in your city. फिर आप अपने शहर के रखवाले बनते हो। Many men are just like dumb people. They just walk in the city. They are running to their offices. और बहुत आदमी मूर्ख व्यक्ति के समान इधर उधर भटकते हैं, अपने कंपनी में के लिए दौड़ के भागते हैं। See, for example, in one of the city, they have brought 1,000 witches to pray over the city. Do you know that? और ऐसा एक शहर है जहां पर 1000 विचेस को वहां पर लाया है ताकि वो वहां पर जादू टोना करे और उस पर दुष्ट प्रार्थना। I called one of my friend in that city. He doesn't even know what's happening in और that उसी city. शहर के मेरे एक मित्र को जब मैंने बुलाकर पूछा तो उसको इस बात की जानकारी भी नहीं है। It is not just taking care of yourself. I tell you something. You need to take care of your city. और आपको केवल अपने आप की सुरक्षा नहीं करनी है और अपने आप को नहीं संभालना है, अपने शहर को भी संभालना है। Adam was literally a watchman, a guardian for this earth. और अब वो सारी पृथ्वी के लिए एक वॉचमैन के समान, एक रक्षक के समान खड़ा हुआ था। Today, many men are not able to protect their own families. आज कई आदमी ऐसे हैं जो अपने ही परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते। Please understand this. इस बात को समझे। You should be in a position to talk in your family, and your family should obey you. और आप ऐसे एक स्थान पर रहे जहां पे आप अपने परिवार में आप अपनी बातों को रख पाए और आपका परिवार आपकी बातों को माने। You need to be a head in your house. अपने घर में आपको सर बनना है। You cannot make anybody else your head in your house. और किसी अन्य व्यक्ति को अपने परिवार का सर नहीं बना सकते। Your children cannot think that guy is a hero, this guy is a hero, and my father is just a dummy. If your children think like that, that is not right. और अगर आपके बच्चे समझते हो वो व्यक्ति जो है वो हीरो है, ये व्यक्ति जो है ये हीरो है, मेरे पिता तो एक मूर्ख व्यक्ति के समान है, तो ये सही बात नहीं है। You have to be a man of prayer to be a watchman. एक व्यक्ति बनना है तभी आप एक रक्षक बन पाओगे। Adam was a watchman of his house, of the whole earth. आदम जो था सारी पृथ्वी के लिए एक रक्षक के तौर पर बना हुआ था। He was a representative of God. वो परमेश्वर का प्रतिनिधि था। He carried the image of वो God. परमेश्वर के स्वरूप में था। Let's turn to another verse, Psalm verse 8. भजन संहिता 8वें वचन को देखिए। Chapter 8 verse 5. 8वां अध्याय 5वां वचन। Psalm chapter 8 verse 5. 8वां अध्याय 5वां वचन। You have made him a little lower than God, and you have crowned him with glory and honor. और तूने परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है लेकिन महिमा और प्रताप से उसको मुकुट पहनाया है। See how God put glory and honor inside that man. और कैसे परमेश्वर ने महिमा और प्रताप उस मनुष्य के अधीन रखा है। Now in the Hebrew, the word glory means kabod, means heavy. और इब्रानी भाषा में जो महिमा जो शब्द है वो उसको दिया गया है कबोद। कबोद का अर्थ है कि भारी, heavy. भारी। Say heavy. आप कहे भारी। So if you carry glory, carrying glory is being heavy. और अगर आप महिमा को लेकर चलते हो तो उसका अर्थ है कि आप उस भार को, उस वजन को लेकर चल रहे हो। What is heavy? और ये भारी वजन का अर्थ क्या Heavy है? is not to become heavy. और हेवी इसका अर्थ नहीं कि आप मोटे बन जाए। Heavy means to be heavy in authority. और इस भारीपन का अर्थ है कि आप अधिकार में भारी व्यक्ति बने।
Adam carried the weight of this whole earth. और आदम जो है वो सारी पृथ्वी का वजन लेकर चल रहा था। It is not, we don't know how much kilos Adam was weighing, but I tell you, he carried the weight of the whole earth in him. He had the authority on the whole earth. और उसका वजन कितना था ये तो नहीं जानते, लेकिन आदम ने सारी पृथ्वी का वजन, वो भार जो है अपने कंधों पर लेकर वो He चलता had था। full authority on this earth. और इस पृथ्वी पर सारा अधिकार वो रखता He था was in charge of this earth. और इस पृथ्वी का वो सेवक रक्षक था। There is another word for glory which is called as doxa. और दूसरा एक शब्द है महिमा के लिए, वो है डॉक्सा। It means recognition. और उसका अर्थ है कि उसकी पहचान कर पाना। It is not that he had authority, people also recognize this guy has authority. और केवल इतना ही नहीं था कि आदम के पास वो अधिकार था, लेकिन लोग पहचानते भी थे कि ले- उसके पास अधिकार